A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 11th accountancy. As you know very well, in the last few videos, we discussed the important theoretical and practical questions related to the class 11th accountancy. And you know very well, in the upcoming February, your revision, your final examination will be started. So that's why let's we take the few important questions from each and every chapters of your class 11th accountancy. And in the last video we discussed the questions related to the accounting equation, short answer type question, as well as we discussed the questions related to the depreciation, as well as we discussed the format of bank reconciliation statement. So in this video, first of all, we discussed the questions related to the bank reconciliation statement which are based on the overdraft balance. And thereafter, we will discuss some of the important questions which are related to the BRS in the different situation, because you know very well there are basically four balances are there. Four balances related to the BRS, and BRS, it means the bank reconciliation is a statement which reconcile the difference between the cash book and passbook, which reconcile the difference between the balance of the cash book and passbook. And cash book have two balances, debit balances and credit balances, and passbook is also having two balances, debit balances or credit balance. Cash book debit balance means plus, credit balance of the cash book minus, and in case of the passbook, the debit balance denoted the negative balance and credit balance denoted the positive balance. And the important part is that this key credit balance of the cash book is also known as an overdraft balance, and debit balance of the passbook is also known as an overdraft. Overdraft balance means negative balance, and debit balance of the cash book and credit balance of the passbook will be known as an favorable balance. Favorable balances. Apart from this, according to my experience and according to my way by which we prepare the BRS, there is no need to learn any kind of the adjustment in your mind. It is just based on all the theoretical and practical knowledge. और BRS बनाने के लिए आपको किसी चीज को रटने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ समझने की जरूरत है. बट आपको इतना ध्यान रखना है, द क्वेश्चन में जिसका भी बैलेंस गिवन है, इफ क्वेश्चन इज गिवन द बैलेंस ऑफ द कैश बुक, so the changes will be applied in the cash book. And when question is given the balance of the passbook, so question is so the changes will be applied in the passbook. Simple सा, कैश बुक का बैलेंस गिवन है तो कैश बुक में चेंज करेंगे, पासबुक का बैलेंस गिवन reconciliation statement is bank reconciliation statement, and the date at which we prepared in this question, that is 31st December 2009. डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि समटाइम्स डेट इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर डेट के बाद की ट्रांजेक्शन हमें आइडेंटिफाई करना हो तो हम क्वेश्चंस की हेल्प से जिस डेट में BRS बना रहे हैं उस डेट को कंसंट्रेट करके बनाते हैं. फॉर्मेट आपको पता ही है, फॉर्मेट बहुत ही सिंपल है. इसमें पर्टिकुलर्स हैं और प्लस आइटम्स हैं और माइनस आइटम्स हैं. और इसमें एक बात और ध्यान रखनी है कि सबसे पहले हम ये ध्यान रखते हैं कि इन दिस क्वेश्चन की कौन सा बैलेंस गिवन है, डेबिट बैलेंस गिवन है कि क्रेडिट बैलेंस गिवन है, कैश बुक का बैलेंस गिवन है कि पासबुक का बैलेंस गिवन है. सो द क्वेश्चन इज, on 31st December 2019, the cash book of the Rohan showed an overdraft of 56,000. Overdraft और cash book show कर रहा है overdraft of rupees 56,000. So the first is overdraft balance as per cash book. So cash book के अकॉर्डिंग overdraft balance है, that is an 56,000. So हम लोग कहाँ लिखते हैं, माइनस में, बिकॉज कैश बुक का ओवरड्राफ्ट मतलब माइनस. नेक्स्ट, अब एरर को हम लोग फाइंड आउट करते हैं. क्या लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स मेक आउट अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट. आपको सारी इंफॉर्मेशन से बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है, बट लिसन केयरफुली.
बहुत ही ध्यान से समझना, वो ये है कि जब भी हम ओवरड्राफ्ट बैलेंसेस पर कैश बुक की बात करते हैं तो इट मींस नेगेटिव बैलेंस है। दूसरा कैश बुक का बैलेंस गिवन है, इट मींस चेंजेस कहां करना है, हमें चेंजेस करना है कैश बुक में। क्योंकि मैंने आपको कोई फॉर्मूला नहीं बताया है, ना कोई चीज लर्न करने को कहा है कि आप ये चीज लर्न कर लो और आपको लर्न रहेगा तो याद आ जाएगा कि प्लस करना है कि माइनस करना है। सो ऑल द थिंग्स डिपेंड ऑन द सिचुएशन। विद द हेल्प ऑफ द वर्किंग नोट्स, विद द हेल्प ऑफ द कॉमन सेंस हम इसमें एड और लेस करते हैं, यानी कि प्लस और माइनस करते हैं। सो पहला आइटम क्या है, चेक ड्रॉन बट नॉट इन कैश बिफोर 31 दिसंबर 2019 अमाउंटिंग टू 39,460। सो चेक ड्रॉन किया, चेक ड्रॉन बट नॉट इन कैश, इट मींस आपने चेक एक तरह से इशू किया 39,460 का। तो अगर उसका वर्किंग नोट मैं यहाँ इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज वी हैव अ लैक ऑफ स्पेस, बट अगर आपको एग्जामिनेशन में करना होगा तो आप इसको कहीं और करिएगा, ये नहीं कि जरूर नहीं कि बगल में ही करना है। ओके, तो कैश इन पासबुक में क्लियरली लिखा है कि 39,460 का हमने चेक इशू किया, तो 39,460 हमने कैश बुक से माइनस किया। चेंज किस में करना है हमें, कैश बुक में। तो कैश बुक में ऐसा क्या करें कि हमारा ये एरर खत्म हो जाए, प्लस कर दें 39,460, बस आपको यही करना है। इतना सिंपल सी बात है, सोच देख लीजिए आप। सेकंड क्या लिखा है, सेकंड ट्रांजेक्शन गिवन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, चेक पेड इनटू द बैंक बट नॉट क्रेडिटेड बिफोर 31 दिसंबर 2019 अमाउंटिंग टू 48,910। आपने चेक पे किया बैंक में, यानी चेक जमा किया, चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड। सो कैश एंड पासबुक, आपने चेक जमा किया तो आपने मान लिया ना कि 48,910 रुपीज आपने बैंक में जमा कर दिया, बट पासबुक में तो जमा नहीं हुआ। जब जमा ही नहीं हुआ तो अब आपको करेक्शन कहाँ करना है, इस पूरे पोर्शन में करेक्शन कहाँ करना है, कैश बुक में, इसलिए माइनस को अंडरलाइन कर दिया। तो ऐसा क्या करेंगे करेक्शन सही हो जाए, माइनस कर दो, तभी ना यहाँ जीरो है तो यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा। कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं, बस आपको सेंटेंस को पढ़ना जरूरी है, सेंटेंस को समझना चाहिए। थर्ड, अ बिल्स रिसीवेबल फॉर 5,200 previously discounted with the bank had been dishonored and bank charges debited the bank passbook amount to rupees 550। क्लियरली लिखा है बीआर था 5,200 का, जिसे हमने बैंक से डिस्काउंट कराया था। ठीक है, बैंक चार्जेस हमारे पासबुक में क्या हो गया, डेबिट हो गया, कितने का, 550 रुपए का। सो क्लियरली यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 5,200 का बैंक डिसऑनर्ड हो गया। यहां से देखना, अब देखो आपने एक बिल्स था, गए बैंक में डिस्काउंट कराया, तो बैंक ने आपको उसका पैसा दे दिया। आफ्टर सम टाइम बैंक को पता चला कि वो बिल डिसऑनर्ड हो गया, तो बताइए वो किसके अकाउंट से पैसा काटेगा, मतलब वो बिल का पेमेंट नहीं होगा तो बैंक किसके अकाउंट से वो पैसा लेगा, वो पैसा लेगा वो आपके अकाउंट से पैसा लेगा, क्यों किसी और के अकाउंट से पैसा लेगा। सो वो पासबुक में से सबसे पहले आपका जो बिल का अमाउंट है 5,200 वो डिडक्ट कर लेगा कि तुमको मैंने दे दिया है, तुमने जिसके बेसिस पे मुझे बीआर दिया था वो तो मुझे पेमेंट किया नहीं, अब मैं तुम्हारे अकाउंट से पैसा काट लूंगा। उसने काट लिया 5,200। आगे लिखा हुआ है इस मिस्टेक के लिए बैंक ने बैंक चार्जेस भी चार्ज कर लिया, कितना, 550। तो फिर आपके अकाउंट से और कितना काट लिया, 550। सो यू कैन सी दैट बैंक ने टोटल आपके अकाउंट से कितना रुपया काटा, -5750। चेंज किस में करना है, फिर से वही बात कैश बुक में। तो क्या करें सर, यहां माइनस है, यहां पे भी माइनस कर दो। ये मिस्टेक जो है कैश बुक से रिलेटेड है और उसको हम लोगों ने क्या कर दिया, माइनस कर दिया 5750। क्या लिखेंगे इसको, इसको लिखोगे आप सेंटेंस में जो लिखा हुआ है, बी आर डिस्काउंटेड, बी आर डिस्काउंटेड dishonored, we are discounted dishonored and bank charges charged by bank. Number 4, fourth will be a
very clear about it. Debit is made in the passbook for 1200 on account of the interest on overdraft. आपको पता है आपके अकाउंट में कैसा बैलेंस है, प्लस है कि माइनस है? सर ओवरड्राफ्ट है यानी माइनस बैलेंस है। तो बैंक आपको पता है ना, बैंक आपको इस केस में इंटरेस्ट देगा नहीं, आपसे इंटरेस्ट लेगा, क्योंकि आपने बैंक का पैसा लिया हुआ है। सो बैंक आपसे जब इंटरेस्ट लेगा तो आपको तो नहीं पता ना कि वो इंटरेस्ट कितना काट रहा है, क्योंकि पहले सबसे बड़ी बात है कि बैंक का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना इट इज वेरी टफ टास्क। सो बैंक ने इंटरेस्ट के नाम से आपके अकाउंट से काट लिए कितने, 1200 रुपीज काटे। तो आपको चेंज किस में करना है, कैश बुक में। जाहिर सी बात है क्या कर देंगे, -200। तो लिखोगे इंटरेस्ट डेबिटेड बाई बैंक ने कितना इंटरेस्ट डेबिट कर दिया, 1200। नेक्स्ट है द बैंक हैज कलेक्टेड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिटेड 7600 इन द पासबुक। अब कैश और पासबुक है, बैंक ने आपको इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपके अकाउंट में क्या लिखा है, क्रेडिटेड। क्रेडिटेड मतलब पासबुक में क्रेडिट, पासबुक का क्रेडिट मतलब प्लस। बहुत ही ध्यान से, पासबुक का डेबिट मतलब बैंक ने अगर डेबिट किया इसका मतलब उसने माइनस किया, बैंक ने क्रेडिट किया इसका मतलब उसने प्लस किया। कैश बुक में या अकाउंटेंट ने क्या किया, डेबिट किया इसका मतलब प्लस किया, क्रेडिट किया तो मतलब माइनस किया। ये वर्ड समझ लो। तो पासबुक में प्लस हुआ 7600, लेकिन आपकी कैश बुक में तो कुछ हुआ नहीं, चेंज किसमें करना है, कैश बुक में। तो ये जो साइड मैंने सर्कल की हुई है यही ये होता है रेक्टिफिकेशन, यानी बीआरएस का मतलब होता है रिकॉन्सिलेशन करना, बिकॉज बीआरएस इज बैंक रिकॉन्सिलेशन इज अ स्टेटमेंट व्हिच रिकॉन्साइल द डिफरेंस बिटवीन द कैश बुक एंड पासबुक। तो कितना बैंक ने इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्ट किया, 7600, तो इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। एंड नरेशन इज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट credited by बैंक। सो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। एंड आफ्टर सॉल्यूशन यू कैन सी दैट अब हम लोग क्या करते हैं, द फाइनल टास्क। द फाइनल टास्क इज कि हम दोनों साइड को अच्छे से ऐड करते हैं एंड द डिफरेंसेस, जैसे क्रेडिट साइड को ऐड किया तो वी फाइंड 1,11,860। डेबिट को जब हम ऐड करेंगे तो दैट इज 0, 6, 0, 1, 4,47,060। सो यू कैन सी दैट प्लस आइटम में कम आ रहा है, माइनस आइटम में ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब क्या है, अभी भी आपका नेगेटिव बैलेंस है। कैश बुक का अपोजिट क्या होगा यहाँ पर, पासबुक। अब यहाँ थोड़ा स्पेस लेकर जहां डिफरेंस है पासबुक, और अगर माइनस आइटम ज्यादा है प्लस आइटम कम है, इसका मतलब आपका जो वैल्यू है नेगेटिव है। इसका मतलब पासबुक का भी कौन सा आंसर आया है, ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक, कितना आएगा, जो दोनों का बैलेंस होगा 1,11,860 माइनस 47,060, दैट इज 64,800। तो ये इक्वल आ जाएगा 1,11,860, 1,11,860। और यही आपका आंसर हो गया। जिस तरह से मैंने प्रेजेंट किया है बीआरएस को, सेम एज इट इज आपको एग्जाम में भी ऐसे ही बीआरएस बनाकर प्रेजेंट करना है। क्योंकि अगर आपका आंसर क्लियर नहीं होगा, अगर आपका आंसर टू द पॉइंट नहीं होगा, सो आपको कोई भी मार्क्स अलॉट नहीं किए जाएंगे। और यहाँ पे जो मेन आंसर है वो क्या है, ये सब पे मार्क्स है। जो ईच एंड एवरी चीजें आपने हर जगह प्लेस की हुई है, इन सबके मार्क्स हैं। जो ये 64,800 आया उसका भी मार्क्स है, टोटल का भी मार्क्स है, प्रेजेंटेशन का भी मार्क्स है, हेडिंग का भी मार्क्स है। अगर आप कोई चीज अच्छे से प्रेजेंट नहीं करते हो, इट मींस आप लोग अकाउंटेंसी को लेकर सीरियस नहीं हो, बिकॉज अकाउंटेंसी इज जस्ट अबाउट द प्रेजेंटेशन। So let's we move to the next question, which are also related to the bank reconciliation statement, and you know very well. Before solving this question, first of all we prepare the format of bank reconciliation statement, and according to this question we prepared the bank reconciliation statement on 31st March 2020,
as at 31st March 2020, and the format are particulars plus item minus item. Plus items and minus items. So according to this question, on comparing the cash book with the passbook of Naman, it is found that on 31st March 2020, bank balance of rupees 1,40,960 debit showed by the cash book differs from the bank balance of the passbook with regard to the following. कह रहा है कि बैंक का जो बैलेंस था वो डेबिट बैलेंस शो कर रहा है ₹1,40,960 ऑफ द कैश बुक. So cash book का debit balance means it is in positive balance. You know very well. The debit balance of the cash book will be known as the positive balance, favorable balance of the cash book. So हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे इस क्वेश्चन में? Debit balance as per cash book, and the value is 1,40,960. Okay. And after that, let's we discuss each and every reason जिसके कारण ये differences find out हो रहे हैं. So the first reason is bank charges ₹100 on 31st March 2020 are not entered in the cash book. यानी बैंक चार्जेस था ₹100 जो कि कैश बुक में entered नहीं हुआ. So आपको पता है कैसे वर्किंग करते हैं, कैश बुक है और पासबुक है, और बैंक चार्जेस हुआ कितना ₹100. सो बैंक चार्जेस 100 है. सो यू नो वेरी वेल बैंक चार्जेस क्या होता है, पासबुक में से माइनस हो जाता है. सो अगर पासबुक से अगर ₹100 माइनस हो रहा है और उसे हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया है, तो ऐसा क्या करें कि ये एरर रेक्टिफाइड हो जाए. पहले तो मैंने आपको ये बताया था कि जब भी कोई एरर हो या कोई भी रीजन हो जिसके कारण ये डिफरेंस दिख रहा है, पहले उसके रीजन को आप पर्टिकुलर्स में लिख लो. क्या है रीजन? Bank charges not entered in cash book. Reason is bank charges not entered in cash book. ठीक है, आपने रीजन लिख लिया. और दूसरी बात, फिर इस शॉर्ट तरीके से आप आइडेंटिफाई कर लो कि ये वैल्यू प्लस में लिखी जाएगी कि माइनस में लिखी जाएगी. और मैंने आपको बताया था कि जिस क्वेश्चन में जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हो उसका जो भी बैलेंस लेके चलो, जैसे इस क्वेश्चन में आप देखो तो लिखा है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक. सो चेंजेस विल बी अप्लाइड इज ऑलवेज इन द कैश बुक. यानी इस पूरे क्वेश्चन में जब भी हम रेक्टिफिकेशन करेंगे, सो ऑल दी चेंजेस आर अप्लाइड इन द कैश बुक. सो कैश में पासबुक में माइनस हो गया 100, हमें चेंज किस में करना है, कैश बुक में. तो ऐसा क्या करें कि पासबुक के इक्विवेलेंट कर दें, -100 कर दो. सो उस वैल्यू को कहां लिखोगे, -100. ओके. द नेक्स्ट adjustment is on 21st March 2020, a debtor paid ₹12,000 into the company's bank account in settlement of his account, but no entry was made in the cash book of the company in respect of this. कह रहा है एक कस्टमर था, एक डेटर था जिसने हमारे डायरेक्ट कंपनी के अकाउंट में ₹12,000 जमा कर दिए. यानी द रीजन इज डेटर पेड अमाउंट directly to the bank account of company. यानी कि एक डेटर था जिसने बिना कंपनी को इन्फॉर्म किए डायरेक्टली वो पैसा किस में जमा कर दिया, कंपनी के बैंक अकाउंट में जमा कर दिया. सो इट इज अ कॉमन सेंस कि अगर कोई भी कस्टमर या कोई भी पर्सन डायरेक्टली कंपनी के अकाउंट में पैसा जमा करेगा तो उससे उसका कौन सा बैलेंस इंक्रीज करेगा, पासबुक. कितने से इंक्रीज करेगा, ₹12,000 से. वैल्यू है 12,000. और चेंजेस हमें किस में करना है सर, कैश बुक में करना है. तो ऐसा क्या करें कैश बुक में कि वो पासबुक के इक्विवेलेंट हो जाए, +12,000. ओके. नाउ द थर्ड रीजन इज checks totaling 12,980 were issued by the company and duly recorded in the cash book before 31st March 2020 but had not been presented at the bank for payment until after that date. Listen carefully. चेक जिसकी टोटलिंग है ₹12,980,
उसे कंपनी ने इशू किया, ठीक है, चेक इशू हुआ, कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ, बट 31 मार्च तक वो बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ, तो सिंपल सी बात है, ये रीजन कौन सा है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक, लेकिन वो पैसा अभी भी बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ फॉर पेमेंट। तो सिंपल सी बात है कि आपने चेक इशू किया तो आपने तो मान लिया कि 12,980 रुपीज आपके कैश बुक से कम हो गए, यही ना मानते हैं, लेकिन पासबुक में कम माइनस होता है जब तक वो बैंक में प्रेजेंट ना हो जाए, तो यहां बैंक में तो प्रेजेंट हुआ ही नहीं। सो चेंज किस में करना है हमें, कैश बुक में। कैसा करें कि पासबुक के बराबर जाए 12,980 ऐड कर लें। ओके, नंबर 4, अ बिल फॉर ₹6,900 डिस्काउंटेड विद द बैंक। आपने एक बिल था 6,900 रुपीज का, उसे आपने बैंक से डिस्काउंट कराया with the bank is entered in the cash book without recording the discount charges of 800। यानी अपने बैंक से डिस्काउंट, एक बिल डिस्काउंट कराया, कितने का, 6,900 रुपीज का, आपने उसे कैश बुक में इंटर तो किया, लेकिन 900 रुपीज का जो 800 का जो डिस्काउंट चार्ज था वो आपने रिकॉर्ड नहीं किया। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। एक बिल था 6,900 रुपीज का, ठीक है, आपने उसको डिस्काउंट कराया। 6,900 रुपीज का कोई भी बिल है, अगर आप डिस्काउंट कराते हो तो बैंक उस पर एक डिस्काउंटिंग चार्जेस चार्ज करता है, और वो डिस्काउंटिंग चार्जेस कितना था आपका, दैट इज इन 6,900। बट ड्यू टू द लैक ऑफ नॉलेज, आपने बैंक से 6,900 का बिल डिस्काउंट कराया, तो डिस्काउंट चार्ज कितना था, 800, आपने यहां पे रिकॉर्ड किया प्लस 6,100। 6,900 में से 800 डिस्काउंट कट लिया बैंक ने, तो आपके अकाउंट में कितना दिया, 6,100। आपने कैश बुक में रिकॉर्ड तो किया, लेकिन कंप्लीटली आपने कितना रिकॉर्ड कर दिया, 6,900। यानी आपको जो 800 रुपए डिस्काउंट बियर करना था, आपने उसको शो नहीं किया। चेंज किस में करना है, कैश बुक में। ऐसा क्या करें कैश बुक में कम हो जाए, सर 800 माइनस कर दीजिए, भाई सिंपल सी बात है, 800 हमें क्या करना होगा, माइनस करना। ठीक, ये है 4th, इसको क्या कहेंगे, discount charges on bill not recorded in cash book। Okay, let's we move to the next transaction, and the next transaction is बहुत ही सिंपल सा है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, $13,520 is entered in the cash book as paid into the bank on 31st March 2020 but not credited by the bank until the following day। आपने 13,520 रुपए का चेक जमा किया, 13,520 रुपए का चेक बैंक में जमा किया, लिखा है ना, entered in the cash book as paid into the bank but not credited by the bank until the following day। इसका मतलब क्या होता है, चेक deposited but not credited in the bank। लेकिन वो क्रेडिट ही नहीं हुआ बैंक में। क्यों नहीं क्रेडिट हुआ, क्योंकि बैंक में वो चेक जमा ही नहीं हुआ अभी तक, ड्यू टू द एनी रीजन। तो हमें चेंज किस में करना है, सिंपल सा कैश बुक में चेंज करना है। क्या करें, यहाँ 800 माइनस किया था, यहाँ प्लस किया, माइनस था प्लस किया, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या करेंगे, माइनस करेंगे, -13,500। Next, number 6, no entry has been made in the cash book to record the dishonor on 15 March 2020 of a check for ₹650 from the Bhanu। कह रहा है कैश बुक में एंट्री पास नहीं हुई, किस चीज की एंट्री पास नहीं हुई, दैट इज एन to record the dishonor on 15 March 2020 a check of ₹650 received from the Bhanu। आपको भानु ने एक चेक दिया 650 रुपए का, आपको इतने चेक रख लिया, ठीक, उसको गए बैंक में जमा कर दिया। तो आप क्या एज्यूम करोगे, आप यही ना एज्यूम करोगे कि चेक जमा हो गया तो आपने अपने बैंक कैश बुक में प्लस कर दिया। सिंपल सी बात, कितना प्लस किया आपने, 650 रुपीज प्लस कर दिया। बट
पासबुक में तो प्लस नहीं होगा ना, क्यों नहीं प्लस होगा? क्योंकि चेक क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, उसके अकाउंट में पैसा ही नहीं था, चेक डिसऑनर हो गया। और डिसऑनर होने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पासबुक में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा तो आप कैश बुक से ही क्या करोगे, उसको माइनस करोगे। तो चेंज किसमें करना है, कैश बुक से। तो नंबर 6 विल बी अ check dishonor, check deposited becomes dishonor। यानी चेक आपने डिपॉजिट किया, अब वो चेक बैंक में जाकर क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। सो आपको प्लस करना, ये क्या करना होगा, माइनस 650 माइनस कर दिया। नाउ लेट्स वी मूव टू द लास्ट ट्रांजेक्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, that is in bank column of the debit side of the cash book overcasted by 20,000। जो बैंक कॉलम था कैश बुक का डेबिट साइड का, तो आपको मैंने बताया था कैश बुक का जो डेबिट साइड होता है वो प्लस होता है। कैश बुक का डेबिट साइड क्या होता है, प्लस होता है। तो आपने कैश बुक का जो डेबिट साइड प्लस होता है उसको आपने ओवरकास्ट कर दिया। इसका मतलब आपने अपनी कैश बुक को बढ़ा दिया 20,000 रुपए से, ठीक है। कैश बुक का डेबिट कॉलम ओवरकास्ट यानी प्लस, मैंने आपको बताया था क्लास में, कैश बुक का डेबिट साइड ओवरकास्ट मतलब प्लस, कैश बुक का डेबिट साइड अंडरकास्ट मतलब माइनस, और कैश बुक का क्रेडिट साइड ओवरकास्ट माइनस, कैश बुक का क्रेडिट साइड अंडरकास्ट प्लस, ठीक। तो आपने कैश बुक प्लस कर दिया, चेंज किसमें करना है, कैश बुक में क्या करें, माइनस कर दो। सो आपको उसको क्या करना है, -20,000। और फिर क्या करोगे, इसका नरेशन लिखोगे, नंबर 7 डेबिट साइड ऑफ कैश बुक ओवरकास्ट, डेबिट साइड ऑफ कैश बुक ओवरकास्ट। अब ये हो गया आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन आपने पूरा कर लिया। अब क्या करना है आपको, नाउ अब आपको टोटलिंग करनी है। टोटलिंग कैसे करते हैं पता ही है, और टोटलिंग के बाद आपको पता है ये दोनों साइड इक्वल होना चाहिए, और दोनों साइड इक्वल करने के लिए यू हैव अ, जैसे डेबिट में टोटल आ रहा है 1,65,940, क्रेडिट में भी कितना आना चाहिए 1,65,940, बट क्रेडिट में बैलेंस आ रहा है। सो ये जो बैलेंस है इट विल बी नोन एज एन क्रेडिट और फेवरेबल बैलेंस, क्योंकि डेबिट का अपोजिट क्या होता है, क्रेडिट होता है। और इस क्वेश्चन में आप देखो प्लस साइड इज ग्रेटर देन द माइनस साइड, सो कैश बुक का अपोजिट होगा पासबुक, और पॉजिटिव का फेवरेबल बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। सो द आंसर इज क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक एंड द अमाउंट इज, दोनों के बीच का डिफरेंस आ रहा है अकॉर्डिंग टू माई कैलकुलेशन 1,30,870। ओके, सो ये सॉल्यूशन हो गया आपका, यही फाइनल आंसर है आपका। ये जो मैंने एरो लगाया है यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया। ओके, सो प्लीज नोट डाउन दिस सॉल्यूशन इन योर कॉपी प्रॉपरली। So you can see that in this question we take almost 7 transactions which are related with a different reason. So before preparation of the bank reconciliation statement it is a very important for you कि पहले ये पता करो कि क्वेश्चन में कौन सा बैलेंस गिवन है, पॉजिटिव बैलेंस के नेगेटिव बैलेंस। तो इस क्वेश्चन में आपने देखा कि हमें पास डेबिट बैलेंस गिवन है यानी पॉजिटिव बैलेंस गिवन है, और किसका बैलेंस गिवन है, कैश बुक का कि पासबुक का, क्योंकि अगर आपको कैश बुक का बैलेंस गिवन है सो यू विल चेंज इन द कैश बुक, और अगर पासबुक का बैलेंस गिवन है तो आप चेंजेस किस में करोगे, पासबुक में। या ये मान लेना कि क्वेश्चन में जो बैलेंस आपको गिवन है चेंजेस उसी में आप इसलिए कर सकते हो क्योंकि वही बुक आपके पास है, ठीक है। अगर बैंक ने आपको पासबुक दिया है इसका मतलब आपको पासबुक में चेंज करने का राइट है, बट अगर क्वेश्चन में कैश बुक का बैलेंस गिवन है तो आपको क्वेश्चन ने ये राइट दिया है कि यू विल चेंज इन द कैश बुक ओनली। इज दैट क्लियर? सो चेंज किस में करना है, जिसका बैलेंस क्वेश्चन के सबसे पहली लाइन में गिवन है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट केसेस, अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट रीजन बाय विच वी फाइंड आउट द डिफरेंसेस बिटवीन द कैश बुक एंड पासबुक, यानी कैश बुक और पासबुक में जो डिफरेंसेस आते हैं वो डिफरेंसेस के कई रीजन होते हैं। जैसे आप देख रहे होगे बैंक चार्जेस कैश बुक में चार्ज नहीं हुआ, डेटर ने डायरेक्टली अमाउंट पे कर दिया बैंक को, चेक इशू किया लेकिन बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ, डिस्काउंटेड चार्जेस जो था बिल पे वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, चेक डिपॉजिट किया लेकिन बैंक में जमा ही नहीं हुआ, चेक डिपॉजिट किया लेकिन डिसऑनर्ड हो गया, डेबिट साइड ऑफ कैश बुक ओवरकास्ट हो गई। तो इस तरह के जो रीजन है इन रीजन को ट्रैक आउट करिए, किसका इफेक्ट क्या पड़ता है। जैसे
बैंक चार्जेस है, तो बैंक चार्जेस कहाँ से माइनस होता है? पासबुक से। कैश बुक में उसका इफेक्ट नहीं पड़ा। डेटर अगर डायरेक्टली पेमेंट करता है तो आपके बैंक अकाउंट प्लस हो जाता है, तो उसका इफेक्ट आपके पासबुक में पड़ता है। चेक इशू किया, प्रेजेंट नहीं हुआ बैंक में, तो ये कैश बुक में से माइनस होता है, लेकिन पासबुक में इसका कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता। डिस्काउंट चार्जेस है, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, इसका मतलब डिस्काउंट मतलब आपको पैसा कम मिलना था। और चेक डिपॉजिट किया लेकिन बैंक में जमा नहीं हुआ, इसका मतलब कैश बुक में प्लस तो हुआ बट पासबुक में प्लस नहीं हुआ। और चेक डिपॉजिट हुआ, डिसऑनर्ड हो गया, इसका मतलब आपके ने कैश बुक में प्लस किया, पासबुक में जब वो चढ़ने की बारी आई तो पता चला कि समथिंग जिसने भी चेक इशू किया था उसके अकाउंट में पैसा नहीं था, या वो चेक एक तरह से कह लो कि चेक में कोई फॉल्ट था, सिग्नेचर एथोराइज नहीं थे, डेट गलत थी, हाँ इसी तरह से चेक एक्सपायर कर गया था, तो उस तरह से चेक डिसऑनर्ड हो जाता है। और डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक ओवरकास्ट, इसको लेकर भी मैंने आपको डिटेल में बताया था कि कैश बुक और पासबुक में ओवरकास्ट एंड अंडरकास्ट की सिचुएशन आती है। ठीक है, चेक अगर ओवरकास्ट हो जाता है इसका मतलब, अरे कैश बुक अगर ओवरकास्ट हो जाती है तो पहले ये फाइंड आउट करो कि डेबिट साइड ओवरकास्ट हुआ है कि अंदर साइड को क्रेडिट साइड ओवरकास्ट हुआ है। डेबिट साइड मतलब प्लस, प्लस अगर ओवरकास्ट हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस साइड अगर अंडरकास्ट हो जाएगा तो उसका मतलब माइनस हो गया। और अगर क्रेडिट साइड यानी माइनस साइड ओवरकास्ट हो रहा है तो कैश बुक ऑलरेडी माइनस हो जा रही है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको अपने कॉमन सेंस से या अपने मेन नोट से आपको ट्रैक आउट करके जो सैंपल पेपर के क्वेश्चन गिवन है उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। और एडिशनल क्वेश्चन जो गिवन है आपके बुक में उसको तो 100% आपको सॉल्व करना ही करना है। ठीक है, सो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने बीआरएस के 2 क्वेश्चंस डिस्कस किए एंड आई होप कि आप लोग बीआरएस में अच्छा करेंगे एग्जामिनेशन में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एंड टेक केयर।